Good morning, students. Welcome to you in your political science class. And in our last classes, we started our chapter number 9, that is globalization. In our last two classes, we started and completed first three parts of this chapter, globalization. In the beginning of the chapter, we started how three examples are there, how the people are giving their services and how the people are taking goods from other country, made from other country, and how the people are providing their services in other country. So the globalizations, after that we started what is globalization, what are the causes of globalization, and due to transportation, due to communication, technology, today the globalization has increased too much. So after that we started political consequences and economic consequences. And today in economic consequences, we completed the globalization means movement of four things like movement of goods, movements of ideas, movements of capital, and movement of people from one part to another. Flow of four things. These are the four flows of four things like goods, ideas, capital, and people. And in economic and political causes, we completed how there is the domination of developed countries in political globalization, in political sphere of globalization and economic sphere of globalization. So after that, today we are going to start next part of the chapter, that is the cultural consequences. Cultural consequences is our next part, which today we are going to start. As you know, when we are saying globalization, the consequences of globalization is not limited to the political and economic sphere. Earlier which we done political and economic consequences, which I just told to you, तो उतना ही नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है कि व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक एंड व्हाट वी वियर एंड व्हाट वी थिंक. व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, व्हाट वी वियर एंड व्हाट वी थिंक, ऑल दीज थिंग्स. The culture effects of globalization lead to fear that this process poses a threat to the culture in the world. अगर हम ऐसी बात करें कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कल्चर भी हैं, वो हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, हमारे पहनने पे और हम क्या सोचते हैं उसका भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का. तो दिस इज कॉल्ड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. इनको कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस का नाम दिया जाता है. तो क्या इसका मतलब है कि दिस ग्लोबलाइजेशन पॉजेज ए थ्रेट टू द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड? क्या ये दुनिया की कल्चर को एक थ्रेट पोज कर रही है? तो इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ uniform culture, or what is called culture homogenization. This is one word, homogenization. Just see, culture homogenization जो है, that is. तो इसका मतलब है कि राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर. ये जो यूनिफॉर्म कल्चर का राइज हुआ है, दिस इज इससे यूनिफॉर्म, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस of globalization is there,
इज इट लीड टू द ग्लोबल कल्चर? क्या इसने एक ग्लोबल कल्चर को के राइज को जन्म दिया है? लेकिन नहीं, द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट लेड टू द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर को इसने राइज नहीं दिया। What we have in the name of global culture is the imposition of Western culture on the rest of the world. जब हम ग्लोबल कल्चर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में हम बात करेंगे कि जब हम व्हेन वी आर सेइंग कि is there cultural consequences led to the global culture? No, it did not lead to the rise of global culture, but it means it led to the impose of the Western culture on the rest of the world. As one chapter is there in second means how there was the end of biopolarity, how the US set up its domination in the world after the end of Cold War. कैसे कोल्ड वॉर के एंड में जो US था उसने अपना डोमिनेशन कर लिया, और ऐसा ही डोमिनेशन जो है वो कल्चर इम्पैक्ट पे भी वर्ल्ड पे कर रहा है। दिस इज गिवन इन द 3rd चैप्टर विच इज डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस दिस टाइम, US कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। तो आज अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी ऑफ बर्गर और ब्लू जीन्स हैज़ ए लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। आज जो है अगर ब्लू जीन्स की बात करें और हम बर्गर की बात करें तो पूरी दुनिया जो है उससे बहुत इम्प्रेस है, और वो हमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस ही लगता है, ठीक है। बट इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि द कल्चर ऑफ द डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन ए लेस डेवलप्ड सोसाइटी। आज जो बड़े जो वेस्टर्न कल्चर है या डोमिनेंट कंट्रीज़ जो हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, उनकी कल्चर जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रही है। दिस इज कॉल्ड मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैकडोनल्ड की बात करते हैं, मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड का नाम करेंगे, विथ कल्चर सीकिंग टू बाइट इनटू द डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम। जो अमेरिकन ड्रीम है, जो भी डोमिनेट करना चाहता है, वो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होना, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर उसकी कल्चर का इम्पैक्ट होना, जिसको मैकडोनलाइजेशन ऑफ द कल्चर का नाम दिया जाता है। दिस इज़ डेंजरस नॉट ओनली फॉर पुअर कंट्री, ये सिर्फ गरीब कंट्रीज़ के लिए डेंजरस नहीं है, बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। For it, why it is dangerous? Not for the some country, dominant country or the poor country. ये खाली poor country के लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि दिस लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ द कल्चर। ये वर्ल्ड की कल्चर को श्रिंक कर देगा, क्योंकि जब वेस्टर्न कल्चर जो है दैट विल डोमिनेट ऑन द होल ऑफ द वर्ल्ड, इट आफ्टर दैट द डिफरेंट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज कल्चर विल नॉट फ्लरिश, दैट विल श्रिंक। सो इससे खाली गरीब देश ही अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि इससे क्या अफेक्ट होगा कि पूरी दुनिया की जो कल्चर है वो श्रिंक हो जाएगी। तो बट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द पिक्चर। ये पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट है कि वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, और उसके बाद वेस्टर्न कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है, और जो है मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, अमेरिका की डोमिनेशन हो रही है, और ग्लोबल कल्चर नहीं हो रही, और कल्चरल होमनाइजेशन जो है वो यूनिफॉर्म कल्चर
जो उससे हो तो रही है, लेकिन कुछ गरीब कंट्रीज़ को खतरा है, और पूरी ना केवल उनको ही बल्कि मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी को भी इससे रिस्क है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सेम टाइम पे एक और बात करें तो जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है आर नॉट ओनली नेगेटिव। खाली पिक्चर का एक साइड नहीं है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे, नहीं। खाली द इम्पैक्ट ऑफ द cultural consequences of globalization are not only negative, it can be positive. ये जो है वो पॉजिटिव, कुछ साइड में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऑल द कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग। जो कल्चर होती है वो खाली स्टैटिक थिंग्स नहीं है। ऑल कल्चर एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम, क्योंकि एक जो कल्चर है, चाहे वो इंडियन कल्चर हो चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, वो खाली स्थिर नहीं रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी, उसके ऊपर बाहर का वाले कल्चर का भी इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होंगे तो दे आर नॉट ओनली नेगेटिव, खाली वो नेगेटिव नहीं होंगे, बट उसके साथ साथ वो हमारी जो इम्पैक्ट होंगे, कल्चरल इम्पैक्ट, वो हमारे चॉइसेस को भी बढ़ा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी चॉइसेस कैसे बढ़ेंगी, अगर हम बर्गर की बात कर रहे हैं तो बर्गर के साथ साथ अगर हम एक और बात करें कि बर्गर इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए मसाला डोसा, बर्गर इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए मसाला डोसा एंड डज नॉट पोज एनी रियल चैलेंज, क्योंकि बर्गर का मुकाबला मसाला डोसा के साथ नहीं हो सकता, और उसके लिए वो कोई मसाला डोसा वो कोई चैलेंज नहीं पोज कर रहा, बल्कि हमारी चॉइस बढ़ गई है कि मसाला डोसा के साथ बर्गर भी। और उसके साथ अगर हम ब्लू जीन्स की बात करते हैं तो ब्लू जीन्स जो है इट इज़ देन अगेन नॉट खाली हमारे फूड के साथ एडिशन नहीं है, बल्कि ब्लू जीन अगर हम बात करें दैट कैन गो वेल विद हैंड स्पन खादी कुर्ता। Blue jeans, there is a great combination of both. What are these? Blue jeans with hand woven khadi kurta. और this trend is not started not only in India. ये ट्रेंड जो है वो खाली इंडिया की बात नहीं है। We have a khadi kurta over jeans. This clothing combination had been exported back to the country that gave us blue jeans. उन कंट्रीज़ में भी ये ट्रेंड गया जिन्होंने हमें ब्लू जीन्स दी। अगर उन्होंने हमें ब्लू जीन्स का एक नया ट्रेंड दिया एंड वी हैव गिवन दैम अ न्यू थिंग मीन्स खादी कुर्ता, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ खादी कुर्ता एंड ब्लू जीन्स, एंड वी हैव सीन सो मैनी इवन अमेरिकन लाइक दिस। क्या क्या पहनना पसंद करते हैं कि सो मैनी यंग अमेरिकन दे आर वेयरिंग अ कुर्ता एंड जीन्स। सो वी कांट से कि कल्चर जो है उसका केवल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है नॉट ओनली नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। सम आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन बी देयर विच कैन इनलार्ज, विच कैन इंक्रीज आवर चॉइसेस, जो कि हमारी चॉइस को बढ़ा सकता है। तो इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि वाइल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन एक इज़ ए वन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, कल्चरल यूनिफॉर्म है, वो एक ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है। द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट द ऑपोजिट अफेक्ट। ये ऑपोजिट अफेक्ट भी कैसे करता है? इट लीड टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। ये इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। हर कल्चर जो है अपने आप में अलग डिफरेंट हो रही है, अगले आप में एक अलग डिस्टिंक्ट हो रही है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन, ये जब हम कहेंगे कि हर कल्चर अपने आप में अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, डिस्टिंक्ट हो रही है, तो इसको एक नया नाम दिया जाएगा। वो पहले जो मिल जाती हैं
heterogenization. Heterogenization. This is called culture heterogenization. So हम कह सकते हैं कि the consequences of culture globalization are both negative and positive, but we have to see the positive side of the picture. So इससे हमारा जो है we completed the culture influence of culture consequences of the globalization. Next part we will complete in the next class. All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment and do your work side by side.